Hello Taurus people, welcome to my reading. It's a reading based on love affairs, relationship. So it consists all about love and the energy of love. So I'll be using different multiple oracle decks, Lovers Oracle deck, the Romance Angels Oracle deck, the Fairies Oracle deck, and the True Emotions Oracle deck. I'll be using these 4 decks. So this reading is particularly for the Taurus zodiac signs. You can view it as a Taurus sun sign, as a Taurus moon sign, or Taurus ascendant or rising sign. So let's start with your reading. These are the Love Oracle deck or Lovers Oracle deck. Even if you're not connected to someone, you like that person, in that case also it will validate. Even if you are in a attached relationship, you're attached to the relationship, you are having an affair, you're having a relationship, then also it will validate. So watch it as a sun sign, as a moon sign, or as an ascendant or rising sign. All 3 will validate. Welcome to my reading, Taurus people. I'm done with shuffling of this particular card. Okay. This card, the first card is for feelings, the second is for intentions, and the third is for action. This side is yours. I'll cover both yours and your partner's feelings, intentions, and actions. This is for your partner. And one more thing, important thing, roles can be reversed because it's a matter of energy. It can reverse anytime. So it may happen that this could be your side, this could be your partner's side. So take it as it resonates with you. Just flip the energies. See how it matches with your life and flip the energies accordingly. Okay. Now I'll be using Romance Angels Oracle deck. Let me see what the Romance Angels have to say as a guidance for you in love. So here is the spread, and last will be the outcome message of your entire love reading, for which I'll be using 2 other separate decks. Let's start with your reading, Taurus people. Okay. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So this is a message. It could be from your partner's side, possibly. He or she wants to say, convey it to you, whether in person or mentally, spiritually, as a platonic love. So it's a message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay, let me see what the angels needs to say. Free yourself. It's time to take back control of your life. Free yourself. It's time to take back control of your life. This is the card and message by the angels. If you are
in any kind of controlling relationship, only then freedom is required. Free yourself. This is what the angels has to say. It's time to take back your control of your life. See, love is not something that the other people will dominate their partner. नहीं, dominance नहीं होता है इसमें. तब वो love नहीं है, वो प्यार नहीं है. Are you getting my point? Then it's not love, my dear. Certainly not love. प्यार बहुत ही peaceful, calm, happy, blissful एक vibration है. So if you feel you're binded by the chains, you're at war, you're at war with your mind and your relationship and trauma and struggles and troublesome phase you're going through because of somebody else's control and somebody else's dominance, then please free yourself. It's time to take back control of your life. अपना कंट्रोल वापस लीजिए. प्यार कीजिए इंसान से, लेकिन उसको इतना मत आज़ादी दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करके आपकी पर्सनालिटी ख़त्म कर दे. आपकी पर्सनालिटी ख़त्म कर दे. आपका जो अंदरूनी ऊर्जा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए. आप अपने तरह रहिए. ऑब्वियसली इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉल्ट विद इन यू or you lack something which you think you should apply in your love life, you should work on yourself. हम लोग को काम करना पड़ता है. हार्ड वर्क चाहिए हर एक चीज़ में, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो जॉब लाइफ हो, करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो. हर एक चीज़ में हम लोग को वर्क हार्ड करना पड़ता है. सो फ्री योर सेल्फ. इट्स टाइम टू टेक बैक योर कंट्रोल. Okay, this could be you. This could be your partner, Taurus people. Feelings. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So true. हम लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ वापस जाते हैं, और जो साथ में लेके जाते हैं वो है मेमोरीज़ जो हम लोग अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं. यही शायद होगा आपके फीलिंग्स में. आप भी शायद यही सोच रहे होंगे. तो एंजल्स का गाइडेंस देखते हैं. मेक द एफर्ट. ग्रेट लव is worth taking the steps you are guided to take. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So ये effort आपके फ्री होने के लिए भी लागू हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के लिए जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसके लिए भी लागू हो सकता है. जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, जिसका भी तरफ हो, ये एफ़र्ट तो बिल्कुल चाहिए. जैसा मैंने अभी कहा, हार्ड वर्क चाहिए, खुद के ऊपर काम करना. मेक द एफ़र्ट. तभी जाके ग्रेट लव आप अचीव कर पाएंगे. ऐसे ग्रेट लव नहीं हो जाता है. लॉन्ग टर्म लव ऐसे नहीं होता है. बहुत कुछ सह के, सीख के, अप्स एंड डाउन से ग्रो करके, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तब जाके आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप पा सकते हैं या जी सकते हैं. दैट इज़ व्हाट लव इज़, एंड दैट इज़ हाउ लव शुड बी. आज एक को पकड़ा, कल छोड़ दिया, फिर और एक को पकड़ा, उसको छोड़ दिया. ये लव है क्या? No. Certainly not. That's not love, my dear. Love is a beautiful thing. It's a very high vibration. These power struggles, ego struggles,
बाइंडिंग विथ चेन्स विथ समवन एल्स मेंटली और फिजिकली. कभी कभी तो फिजिकली भी लोग कर देते हैं. माय गुडनेस, गॉड फॉरबिड एंड सेव देम. So you have to make the effort, Taurus people. This could be for you. If you're doing so, you have to make the effort, or this could be for your partner. Take it as it resonates with you, because the roles can be reversed. The energy can flip anytime. So do the needful as per your requirement. Let's move on to the third card, the card of action. For Taurus people, my beloved, how beautiful. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. See this. This is what love is. फिजिकल नहीं भी हुए, जैसे एरीज के कार्ड में रीडिंग में आया था, चीटिंग, डिसेप्शन. तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यू नो. फिजिकली चीटिंग कर रहे हैं आप, ये ना भी हो सकता है, लेकिन मेंटली अगर चीट कर रहे, ये भी चीटिंग ही कहलाता है. दैट इज ऑल्सो चीटिंग. सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन लव. डोंट वेयर अ मास्क. Never. Show your real self, your true and authentic self to your partner. Love herself or himself truly, because he or she deserves it. And you deserve that kind of attitude, that kind of mindset. My beloved, though we may be physically apart, तब भी प्यार हो सकता है, क्योंकि उसमें मन, स्पिरिट, इमोशंस सब शामिल है. सिर्फ शरीर एक दूसरे से बहुत दूर है. हो सकता है you're in a different place, your partner is in a different country or in a different state. You might not be staying in different same city or same place. Obviously it can happen. It's very natural. But even then, if you are physically apart, spiritually you are united. Spiritually you are always united. Mentally you are always united. ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने नहीं सुना होगा तो फिर ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़रा, या सोलमेट्स के बारे में ज़रा कुछ आर्टिकल्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन. ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली हो हमेशा. दूर रह के भी आप किसी को प्यार कर सकते हैं. So, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Love transcends space and time. Nothing is missing. Angels say they are talking about passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Allow your heart and soul to sing with joy. Even if you are at a distance, even if your partner is staying in a different country, in a different state, then also allow your heart and soul to sing and joy. Don't worry or don't shed tears कि मेरे से दूर है. Physical relationship ज़रूरी है, I will say that, लेकिन दूर रह के भी आप प्यार कर सकते हैं, क्योंकि प्यार is spiritual thing, it's an emotional thing. सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी से प्यार नहीं होता है, और अगर वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी से हो रहा है तो फिर बहुत गलत है.
that is not true love then. That is just a physical attraction. So passion is also required, but allow your heart and soul. इसमें heart रहना चाहिए, इसमें soul रहना चाहिए. Not only the body. Heart and soul. Allow your heart and soul to sing with joy. So even if you're apart, talk to your beloved about your feelings or the action that you need to take. Go down, fly down to meet her or meet him. ट्रेन पकड़िए और जाके मिल के आइए अगर आप मिस कर रहे हैं तो, या फ्लाइट पकड़िए जाके देख के आइए, या एक ही शहर में है तो देन ऑल्सो, तब तो बहुत ही आसान है, जाके मिल के आइए. पैशन को बरकरार रखिए अपने जीवन में. Too much of passion certainly is not good. It might lead to lustful things, you know. So पैशन को भी बैलेंस्ड रखिए. पैशन होना ज़रूरी है, लेकिन टोटली पैशन के ऊपर डिपेंड करना, लव, तब लव बहुत वीक पड़ जाता है. सिर्फ पैशन से ज़्यादा, पैशन से क्या होता है, ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये सब आ जाता है. जोश, जुनून, पैशन हम लोग इसी को कहते हैं ना हिंदी में. ये सब हो जाता है. तो इसको अलाउ मत कीजिए. पैशन को बैलेंस रखिए और जाके मिलिए अपने बिलवेड से. टॉक टू हर और हिम एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. डू इट इन एक्शन. अगर आप फीलिंग्स में रख रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में रख रहे हैं, तो जाके फिजिकली उनसे मिलिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है. जैसे स्पिरिचुअल इमोशनल बॉन्डिंग ज़रूरी है, सोलफुल बॉन्डिंग ज़रूरी है, फिज़िकल भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ फिज़िकल के ऊपर डिपेंड मत होइए. देन योर लव विल नॉट ग्रो. ओके, नाउ लेट मी चेक ऑन द अदर साइड. दिस कुड बी यू, Taurus. दिस कुड बी योर पार्टनर as well. So flip the energies accordingly as it resonates. बैलेंस. अभी मैंने बैलेंस के बारे में कहा था. ओवर पैशन मत होने दीजिएगा कभी. जिस रिलेशनशिप में पैशन होता है उसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है. लव एंड पैशन का एक मिक्स्ड एंड स्मूथ ब्लेंडिंग एंड बॉन्डिंग होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट स्मूथ ब्लेंडिंग एंड बॉन्डिंग. दोनों का मिश्रण बहुत स्मूथ तरीके से और सही तरीके से. बैलेंस. लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. सो बैलेंस लाना अगर चैलेंजिंग होता है, हम लोग का रिलेशनशिप चैलेंजिंग कभी कभी होता है, डेफिनेटली होता है. हर एक चीज़ अपने मन अनुसार नहीं होता है. कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. कभी सोसाइटी से आता है, कभी फैमिली से आता है, कभी जॉब वाइज हो सकता है. तो बहुत तरीके से, बहुत तरह का चैलेंजेस हो सकता है. तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. अगर पैशन का प्रॉब्लम है, ओवर पैशनेट, ओवर लस्टफुल, तो भी आपको बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा. यू हैव टू लिमिट योर पैशन. यू नो, सिर्फ जोश और जुनून से आप ऑब्सेसिव बन जाएंगे. ये एडिक्शन में बदल जाएगा प्यार. सेल्फ लव डेवलप कीजिए. सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये लड़का, मेरा पार्टनर मुझे कंप्लीट करता है, ये लड़की मुझे कंप्लीट करती है, कंप्लीट होने का एहसास देती है, ऐसा मत सोचिएगा. इट इज़ नॉट राइट. अब कोई भी स्पिरिचुअल किताब उठा के पढ़ लो, कभी भी ये मेंशन नहीं होगा. इफ इट्स मेंशन्ड, इट इज़ सर्टनली मेंशन्ड इन अ वे दैट इट इज़ रॉन्ग थिंकिंग अबाउट दैट. ये लिखा होगा उसमें, बिकॉज यू योर सेल्फ आर अ कंप्लीट बीइंग. हम लोग सिर्फ
एक दूसरे को एम्पावर करते हैं या साथी बन के चलते हैं, हावी नहीं हो जाते हैं एक दूसरे पे, या एक दूसरे को कंप्लीट भी नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग खुद कंप्लीट होते हैं। इसके लिए आज दुनिया में इतना डिप्रेशन, इतना तनाव, इतना कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, बिकॉज पीपल डोंट फील दैट कंप्लीटनेस विद इन देमसेल्व्स। सो बी कंप्लीट फर्स्ट, then love will automatically get attracted to you. You will attract, the right manifestation will come to you. You will attract the right love towards you, the right partner towards you. So balance is necessary in your love. Angels say, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. जैसा अभी मैंने कहा कि जाइए, आपके बिलवेड के पास जाइए, क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी ज़रूरी है। आपके बिलवेड के पास जाइए, एक्सप्रेस योर लव। दिस इज द कार्ड व्हाट एंजल्स हैज टू से। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो सामने आमने सामने फ्लावर्स दे के हो, रिंग पहना के हो, कैसे भी करके हो, इन अ पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल वे। सो एक्सप्रेस योर लव। मन ही मन में अंदर मत रखिए, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो उसे एक्सप्रेस कीजिए, जाहिर कीजिए, है ना, तभी तो सही तरीके में ये लव कहलाएगा। मन ही मन में अगर रख देंगे तो फिर कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? आपका लव ब्लॉसम ही नहीं कर पाएगा। शायद आपका पार्टनर जो है वो कभी जान ही नहीं पाएगा उस बात को, या फिर अगर आप पार्टनर भी ना हो, किसी को पसंद करते हैं, वो बंदा या बंदी जान ही नहीं पाएगा कि आप लव करते हैं। सो एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। This was about your feelings. Let's see what's in store for you for action. Taurus people. Life is a series of constantly shifting cycles. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. कंट्रोल मत कीजिए अपने लाइफ को इतना, या फिर अपने आप को, या फिर अपने पार्टनर को भी। शुरू में मैंने कहा था, अगर कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है तो उसे होने दीजिए, क्योंकि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द नेम। हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ, कभी छोटा चेंज, कभी बड़ा चेंज, कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। सो डोंट रेजिस्ट दैट चेंज। डरिए मत किसी चेंज से, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से। हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, अगर चेंज हो गया तो क्या होगा, क्या मैं जी पाऊंगी, क्या मैं इसे टैकल कर पाऊंगी, क्या मैं टैकल कर पाऊंगा, क्या मैं जी पाऊंगा। तो चेंज को रेजिस्ट मत कीजिए। व्हेन वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, वी क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। उससे और क्या होगा, उससे और स्ट्रेस पैदा होगा आपके लाइफ में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके पूरे शरीर में वो स्ट्रेस का वाइब्रेशन फैलेगा। यू नो द कॉर्टिसोल हार्मोन, द स्ट्रेस हार्मोन, इट इज़ नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल इज नथिंग बट द स्ट्रेस हार्मोन। आपके पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन फैलेगा, उससे कितनी बीमारियां फिर पैदा होंगी। सो डोंट रेजिस्ट द चेंज। डरिए मत। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उसे होने दीजिए। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। हमेशा वही होता है, हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं
कोई स्पिरिचुअली डिटोरिएट नहीं करता है, ग्रोथ के लिए ही हम लोग आते हैं इस दुनिया में। सो गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। जो होगा अच्छा ही होगा आपके साथ। लेट मी सी व्हाट द एंजल्स हैव टू से। रिलीजियस फैक्टर्स, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है आप किसी रिलीजियस फैक्टर्स में बंधे हुए हैं या फिर डर रहे हैं। इसी चेंज के कारण शायद आप डर रहे हैं कि आप अगर शादी करेंगे या फिर प्यार करते हैं किसी से, वो दूसरे रिलीजियन से बिलोंग करता है, इस बात को लेके आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर आप खुद डर रहे, तो डरिए मत, गो विद द फ्लो। अगर चेंज हो रहा है तो होने दीजिए। चेंज अगर रिलीजन में हो रहा है तो होने दीजिए। ये एक्शन का कार्ड है। सो दिस मीन्स दिस एक्शन इज रिक्वायर्ड इन योर लव और इन योर लव लाइफ। Maybe your love life is influenced currently by the religious upbringing and spiritual path. So अगर ऐसा कुछ religious factors you resonate with, let it change, let it transform. डरिए मत किसी दूसरे religion से, हम लोग सब एक हैं और एक ही ऊपर वाला है जिसका अलग अलग नाम है, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, Guru Nanak. So let that change happen. Whatever might be that change, let that transformation happen. It will either make or break. Transformation हमेशा यही करता है, either it will make or break. लेकिन जो भी होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपका होगा, हमेशा इस बात को जानिएगा। जो भी होगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होगा, मेंटल इमोशनल ग्रोथ के लिए होगा, जो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सॉरी, दिस वाज द कार्ड ऑफ द इंटेंशन एंड नाउ द कार्ड ऑफ द एक्शन। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किसी दबाव में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, किसी गिल्ट में आके कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन कभी भी ऐसे नहीं लिया जाता है, अगर लिया गया तो वो सही नहीं होगा। इसका आफ्टर इफेक्ट जब आपको पता चलेगा, आप महसूस करेंगे, वो सही कभी नहीं हो सकता है, फिर वो गलत ही होगा। सो डोंट मेक एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। बी ट्रू टू योरसेल्फ। टेक द डिसीजन ओनली व्हेन यू थिंक यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, ओनली व्हेन यू think you're right enough, you're not wearing a mask or pretending anything. दूसरों को खुशी करने के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए नहीं कीजिए, या फिर कोई डिसीजन मत लीजिए। जो लीजिए भलाई के लिए लीजिए और खुद को ट्रू रखिए। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, तब जाके डिसीजन लीजिए। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। This is the card of action. That means in action you need to do this. So don't make any decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, ट्रू हैं, ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं, तो दूसरे भी आपको वैसे ही देखेंगे, वैसे ही पहचानेंगे, वैसे ही जानेंगे।
और फिर आप दूसरों के साथ भी वैसे ही पेश आएंगे, ऑनेस्टली, ट्रूली, ओरिजिनली, ऑथेंटिकली. This is what the action card says for you, Taurus people. Let me see what angels say. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. Addictions are affecting your romantic life. Codependency क्या होता है? Codependency होता है जब आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, ऑब्सेसिव लेवल पे चला जाता है आपका प्यार, एडिक्शन लेवल पे चला जाता है आपका प्यार, तब एक्चुअली वो प्यार नहीं कहलाता है. दैट इज़ नॉट लव. आई हैव सेड इट अर्लियर ऑल्सो, दैट इज़ नॉट लव. कोडिपेंडेंसी इज़ नॉट लव. बी कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ. खुद भी सच्चे रहिए, दूसरों को भी सच्चे बनने का मौका दीजिए, या फिर इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और दूसरों के साथ भी आप सच्चे बने रहिए, ट्रू, ऑनेस्ट, ओरिजिनल, ऑथेंटिक बने रहिए. ऑब्सेसिवली किसी से प्यार मत कीजिए, तब वो कोडिपेंडेंसी कहलाता है. और कोडिपेंडेंसी प्यार नहीं होता है. बी कंप्लीट विद इन योर सेल्फ. यहाँ पे मैंने कहा था एक कार्ड से रिलेटेड कि लव योर सेल्फ, डेवलप सेल्फ लव, नर्चर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ऐसा मत सोचिए कि ये इंसान मेरे जीवन में आएगा तो तब जाके मेरा जीवन कंप्लीट होगा. नो, दैट इज़ नॉट राइट. दैट इज़ एक्सट्रीमली अ रॉन्ग थॉट, रॉन्ग थिंकिंग. कोई भी स्पिरिचुअल किताब आप पढ़ लो, यही मैसेज आएगा बार बार. खुद से प्यार कीजिए, खुद को कंप्लीट कीजिए. सेल्फ लव क्या करता है? खुद को कंप्लीट करता है. हम लोग जो खालीपन महसूस करते हैं ना अंदर, एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, ये सेल्फ लव से भर जाता है. तब फिर अकेला महसूस नहीं होता है. यू आर फुल, यू आर फिल्ड विथ लव, द लव ऑफ नेचर, द लव ऑफ यूनिवर्स. द एंजल्स आर विथ यू. The guidances are with you. The universe, whole universe is with you. You are not alone. Nobody is alone. Nobody is alone. Okay, so now I'll move on to the next two cards from the next two decks, separate decks, which will be of the overall summation. Let's see. You can take it as another guidance. This is True Emotions Oracle deck for Taurus people. Always remember the energies can flip, so do flip it accordingly. This could be Taurus people, your side. This could be your partner's side. Or this could be your partner's side. This could be your side. So take it as it resonates. Take it as a guidance. Empower yourself. Empower your partner. That's what true love is. Obsession, negativity, attachment, addiction. These things do not fall under the category of love, in the name of love. No, ये वहम है, ये एक illusion है जो दुनिया में फैला हुआ है. This is certainly not love. Okay. Now I'll pick up a card from the Fairies deck, Fairies Oracle Fairies deck. Let me see what the fairies have to say for your love life as a guidance. For Taurus people and their partners. Universe, please guide the Taurus people and their partner.
Okay, so a card from the Fairies Oracle deck. This card says, I can't imagine my life without you. I can't imagine my life without you. Taurus people, either you could be saying this or your partner could be saying this or feeling this. Either way, I can't imagine my life without you. What the angels... See, I'll say one thing here. I can't imagine my life without you. Be complete. यहाँ पे भी वही बात आती है. You love that person, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खुद ही जीना बंद कर दूं. तुमको अगर नहीं पा सकता हूँ या नहीं पा सकती हूँ तो मेरा दुनिया पूरा ख़त्म, मेरी दुनिया पूरा ख़त्म, मेरा जीवन ख़त्म, मेरा सब कुछ ख़त्म. No, not at all. Certainly not. Extremely and a foolish idea this is. I would call it a foolish idea. मूर्खता का पहचान है ये. I can't imagine my life without you. Be stable. ये बहुत extreme thought है, you know. I can't imagine my life without you. ये बहुत extreme thought है. So maintain that balance. Maintain that balance, you know. Balance is required. Okay. What the angels need to say or guide? Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. See, I can't imagine my life without you. See how these two cards relate. I'll just explain now. You, if you're saying this or even thinking this, you are actually creating a blockage. It's acting as a block in your mind. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बगैर. मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बगैर. इतना नहीं, इतना नहीं, इतना. It shouldn't be like that. नॉर्मल रहिए, बैलेंस्ड रहिए. वो मेरे जीवन से चला जाएगा या चली जाएगी तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा. नो. यूनिवर्स इज अबंडेंट. मैनिफेस्ट कीजिए, बैलेंस्ड रहिए, नॉर्मल रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए. ब्लॉकेज मत क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में. रिलीज एनी काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉक्स. So this is basically acting as a mental block for you. I can't imagine my life without you. This particular thought is actually creating as a mental block. And for that, you have to release it. You have to release that thought, my dear Taurus people. You have to release it. Abundance. Universe is abundant. Always know that. Prepare yourself for the incoming abundance. Release any mental blocks. Manifestation कीजिए. मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो है. मैनिफेस्टेशन वो होता है जो हम लोग ड्रीम से या थॉट से रियलिटी में लाते हैं. थॉट से ही लाते हैं, सोच से ही लाते हैं, सोच बदल के लाते हैं, रिपीटेडली उसे बोलते हैं. गो थ्रू माई वीडियो बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन, हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. आपको सब कुछ पता चल जाएगा. पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे करते हैं, इसको पॉजिटिवली अफर्म कीजिए. दैट आई विल इमेजिन माई लाइफ विथ यू. ऐसे इमेजिन कीजिए. आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. ऐसे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. कांट, डोंट, नॉट, ये यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है. पॉजिटिवली अफर्म करना है तो आई वॉन्ट टू इमेजिन माई लाइफ विथ यू. ऐसे बोलिए. टेक इट एज अ गाइडेंस. ऐसे बोलिए और फिर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए. यूनिवर्स इज अबंडेंट एंड यूनिवर्स विल सर्टनली हेल्प यू.
So prepare yourself for the incoming abundance. Release any mental blocks. ये mental block को हटाइए. Positively affirm कीजिए. कैसे affirm करना है, कि कौन सा thought मन में चूज़ करना है या मन में बोलना है, और यूनिवर्स को भी मैसेज देना है, कन्वे करना है. मैंने अभी कहा. So do that way. Remove your mental blocks which you may have. In fairyland and in human land, there is enough abundance for everyone. Okay, guys? So wish you all the very best in your love life. Have a great love life. Improve your love life if necessary. Do the needful. Work on yourself and make your love a happy love life and a long-term stable life. Love life. Thank you so much for watching my reading. Wish you all the very best.